व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। अब बांग्लादेश की कट्टर इस्लामी जमात संभाल सकती है सत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पाबंदी। पाकिस्तान का एक और शहर बलूच आर्मी के कब्जे में 3 घंटे के ऑपरेशन में ही सेना के सिकाए गुट ने। पाकिस्तान में सेना का कंट्रोल, सीपीएम सांसद ने मलेशिया में बताया भारत क्यों है पाकिस्तान से अलग। और अब खबरें विस्तार से। अब बांग्लादेश की कट्टर इस्लामी जमात संभाल सकती है सत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पाबंदी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया है। ये फैसला 2023 के उच्च न्यायालय के फैसले को पलटता है, जिसने जमात को अवैध घोषित किया था। इससे बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव बढ़ने की चिंताएं बढ़ गई है। खासकर आगामी चुनाव को देखते हुए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जमात इस्लामी का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वो आदेश को जल्द लागू कराए। हालांकि अदालत ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तराजू के संबंध में कई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन अदालत के इस कदम के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरवादी ताकतों के हावी होने का डर बनाया गया है। जमात इस्लामी की विचारधारा कट्टरवादी है और ये बांग्लादेश में शरिया कानून और इस्लामी खलीफा की मांग करते हुए भी नजर आए हैं। रविवार को मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय अपीलीय पीठ ने इस मामले पर पिछले उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले 1 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के जवाब में जमात इस्लामी के पंजीकरण को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। सबसे जमात को बांग्लादेश के चुनावों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब आने वाले चुनाव में दूसरी राजनीतिक दलों की तरह जमात भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद जमात इस्लामी ने अपनी पंजीकरण बहाली के लिए फिर से अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर आज ये आदेश जारी किए गए हैं। दीर्घ 1 যুগেরও বেশি সময়ের আইনি লড়াইয়ের সফল অবসান হলো। বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী আজকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে তার নিবন্ধন ফিরে পেল। পলিটিক্যালি মোটিভেটেড পিআইএল বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মামলার মাধ্যমে জামাতের নিবন্ধন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজকের এই রায়ের মাধ্যমে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক সংসদ প্রাপ্তি নিশ্চিত হল। আমরা আশা করি এই রায়ের পরে বাংলাদেশে সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত সংসদ গঠিত হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জামাত ইসলামের নেতৃবৃন্দকে বেছে নেবেন, এটা আমরা প্রত্যাশা করি। এবং আমরা এটাও প্রত্যাশা করি বাংলাদেশের আগামী সংসদে ইন্টারেস্টিং এবং কনস্ট্রাকটিভ বিতর্ক হবে, যার মাধ্যমে ডেমোক্রেসি একটি স্থায়ী রূপ লাভ করবে। আজকে মাননীয় আপিল বিভাগ হাইকোর্টের যে রায় ছিলেন এই রায়কে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং ইলেকশন কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য যে সকল ইস্যু ইলেকশন কমিশনের সামনে আছে বা আসবে সেগুলো যেন দ্রুতই নিষ্পত্তি করেন। এর এই মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী তার নিবন্ধন ফিরে পেল এবং প্রতীকের ব্যাপারটিও ইলেকশন কমিশনের সামনে রেফার করা হলো আদার ইস্যু হিসেবে। এই জন্য আমরা মামলার শর্ট অর্ডার চেয়েছি। আমরা আশা করি আগামীকালকের মধ্যেই মামলার সংক্ষিপ্ত আদেশ আমরা হাতে পাব। এই সংক্ষিপ্ত আদেশ আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে অ্যাপ্রোচ করব। বাকিটা ইলেকশন কমিশন আইন অনুযায়ী অতি দ্রুত জামাতের নিবন্ধন এবং জামাতের প্রতীক বুঝিয়ে দিবেন, এটা আমরা প্রত্যাশা করি। যে আজকে যে ডাইরেকশন দিয়েছেন আপিল বিভাগ, সেই ডাইরেকশনে বলেছেন জামাতের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য কোনো ইস্যু
যদি ইলেকশন কমিশনের সামনে থাকে তাহলে যেন ইলেকশন কমিশন এটা ডিসপোজ করে। এই অন্য ইস্যু বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এটি হলো প্রতীক সংক্রান্ত ইস্যু। আমরা আশা করি ইলেকশন কমিশন নিবন্ধনের ইস্যু নিষ্পত্তি করবেন, একই সাথে অন্য ইস্যু হিসেবে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের ব্যাপারটিও নিষ্পত্তি করবেন। আমরা প্রত্যাশা করি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ আদালতের রায় চূড়ান্ত। কে কবে কখন প্রশাসনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এগুলো বিচারিক কোনো সিদ্ধান্ত নয়। এই জন্য আমরা প্রত্যাশা করি ইলেকশন কমিশন রায়ের কপি পাওয়ার পরে অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই দুটো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিবেন এবং আমাদের প্রত্যাশা কার্যকর হোক, এটাই আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। এরপরে কেউ বক্তব্য দিবেন? আজকে শুধু পিটিশনের বাইরে আরেকটা পিটিশন অ্যালাউ করেছেন, সেটা বলবেন? যে মূল পিটিশনের বাইরে আরেকটি পিটিশন যে অ্যালাউ করেছেন এটা ওইটার সঙ্গে কানেক্টেড, ওটা আজকের কোনো বড় ইস্যু নয়, সেই জন্য এটা এখানে উল্লেখ করা না করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। থ্যাংক ইউ। না, এটা জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হবে সময় মতো। আপাতত এখানে কেউ অ্যাড্রেস করছেন না। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য ধারণ করে এখানে কষ্ট করে সময় দেওয়ার জন্য। और अब अगली खबर, पाकिस्तान का एक और शहर बलूच आर्मी के कब्जे में है। 3 घंटे के ऑपरेशन में ही सेना के टिकाए घुटने। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 3 घंटे के बाद ऑपरेशन में बीएलए ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी भवनों और बैंकों पर कब्जा कर लिया और हथियार जब्त किए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के क्वेटा दौरे के दौरान ये हमला हुआ है। पाकिस्तान सेना के लिए बलूच आर्मी से लड़ना टेढ़ी खीर को हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक शहरों और कस्बों पर कंट्रोल करने का दावा कर रही है। बीएलए ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और शत्रु राज्य के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को नाकाम कर दिया। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर प्रांतीय राजधानी क्वेटा का दौरा कर रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूच आर्मी के इरादे कितने अटल है। कब्जे पुष्टि करते हुए बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने बताया कि शुक्रवार को 3 घंटे से ज्यादा समय तक ऑपरेशन जारी रहा, जिसके दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया। जियंद बलूच ने कहा कि लड़ाकों ने पाकिस्तानी लेवी स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, गेस्ट हाउस और बैंक पर कब्जा कर लिया और दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने लेवी और पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशनों और डीसी कार्यालयों में सुरक्षा चौकियों से 30 कलाशिनकोव, अन्य हथियारों और युद्ध उपकरणों को जब्त कर लिया है। साथ ही बताया कि बाद में इन कर्मियों को उनकी बलूच पहचान के आधार पर सशर्त रियायतों पर रिहा कर दिया गया। बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने दुश्मन बलों के 3 वाहनों, राज्य के गोदामों, एक गेस्ट हाउस और 3 बैंकों में आग लगा दी, जबकि 2 वाहनों को हिरासत में ले लिया गया है। और सीपीआई एम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में सेना का ही कंट्रोल बचा है। जॉन ब्रिटास ने पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब एक सैन्य नियंत्रित देश बन गया है। वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। ऐसा केवल एक अकेला गणराज्य में होता है जहां देश राजनीतिक रूप से अस्थिर हो। भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान एक धर्मशासित राष्ट्र। पाकिस्तान में तो नागरिक प्रशासन भी नहीं है। ये एक संदेश है जो हम सभी देशों को देना चाहते हैं। जब भारत में आतंकवाद हो या दिखे तो आपको तटस्थ या चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हमेशा पलटकर उन लोगों को पकड़ लेता है जिन्होंने इसकी मदद की थी। मलेशिया में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए सीपीआई एम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये निर्णय लिया है कि हम किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कदम के रूप में नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान के साथ सह अस्तित्व की कोशिश भी की। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों, सभी सरकारों ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। हमारा संदेश ये है कि किसी भी देश को आतंकवाद के इस प्रमुख पहलू पर तटस्थ या चुप नहीं रहना चाहिए। Languages, just like you have numerous languages. And one aspect
which draws the distinction between India and Pakistan is certainly we are a secular nation, whereas Pakistan is a theocratic nation. So when Abhirajda said that our biggest complaint has been when people hyphenate India with Pakistan. Pakistan is a theocratic state where there is not even a civil administration. It has plummeted to be a military-controlled nation. And the military leader, Asim Munir, has self-declared himself to be the field marshal. It happens only in a banana republic or in a rogue nation. If a military leader says that I am the field marshal, it can happen only in that. So you can understand what the status of Pakistan. Now, Abhishek ji talked about terror having no friends. That is one message which we wanted to convey to all the nations. You shouldn't be neutral or silent when terror inflicts India, because the history of terror has been terror. और अब अगली खबर, आतंकी लखवी जेल में रहते पिता बना। असद ओवैसी ने अल्जीरिया में इसे बताया पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में आना क्यों जरूरी। अल्जीरिया में AIMIM प्रमुख और सांसद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता है और दुर्भाग्य से यही उनकी विचारधारा है। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सभी लोग आतंकियों के खिलाफ पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ों में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में है। इस दौरान AIMIM प्रमुख और सांसद असद ओवैसी ने कहा कि हमने नवंबर में एक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और मुझे यकीन है कि इससे समझ बढ़ेगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द अल्जीरिया आएंगे। उम्मीद है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे। ये सही दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। सांसद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है। और अब अगली खबर, यूक्रेन युद्ध ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है, बढ़ रहा है वैश्विक खतरा। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया ने जिस तरह से रूस की यूक्रेन के खिलाफ मदद की, उसका वैश्विक परिदृश्य पर बड़ा असर पड़ा है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने रूस की छोटे देश, खासकर हिंद प्रशांत महासागर के देशों की सीमाओं को कोई भी नजरअंदाज कर सकता है और कोई भी बहाना बनाकर आक्रमण किया जा सकेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी हिंद प्रशांत महासागर इलाके में यूरोपीय देशों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं शनिवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सुझाव दिया कि यूरोपीय देशों को अपनी सैन्य क्षमता है। कांग्रेस पर शशि थरूर का पलटवार। कांग्रेस की ओर से लगातार आलोचना का सामना कर रहे सांसद शशि थरूर ने करारा जवाब दिया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 के नेतृत्वकर्ता शशि थरूर ने ब्राजील में कहा कि आलोचनाएं होना लाजमी है, लेकिन मेरा ध्यान इस वक्त अपने मिशन पर है। शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। निसंदेह एक संपन्न लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचनाएं होना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते। जब हम भारत वापस आएंगे तो हमारे पास अपने सहयोगियों, आलोचकों, मीडिया से बात करने का मौका होगा, लेकिन अभी हम उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां हम जा रहे हैं और यहाँ के लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि ब्राजील में हम कुछ बहुत ही ठोस रचनात्मक चर्चाओं के लिए तत्पर है। ब्राजील इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। यह हमारा एक ब्रिक्स भागीदार है। हमने 2006 से ही अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, इसलिए ये एक ऐसा देश है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। और हालांकि वे वर्तमान में सुरक्षा परिषद में नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया कि उन्हें हमारी स्थिति से पूरी तरह अवगत रखना और संवाद चैनलों को खुला रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोलंबिया ने दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बयान जारी किया था, जिसे भारत के बारे में कुछ भी कहने के बजाय पाकिस्तानी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई थी, इसलिए हमने उसमें सुधार किया।
हमने सरकार से मुलाकात की, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया और इसके बजाय उन्होंने सरकार और सांसद दोनों की ओर से बहुत सकारात्मक और सहायक कुछ जारी किया है। और अब अगली खबर, रविशंकर प्रसाद नीत शिष्टमंडल यूके पहुंचा। शशि थरूर के दल का ब्राजील में हुआ स्वागत। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजनीतियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तान दुष्ट प्रचार को धराशायी करने में जुटे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा नीत शिष्टमंडल अल्जीरिया में है। रविशंकर प्रसाद नीत दल डेनमार्क से ब्रिटेन रवाना हुआ। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में गया दल इथियोपिया पहुंचा है। फ्रांस, इटली जैसे देशों में भी भारत का रुख बताया जा चुका है। अन्य भारतीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल लोग सिएरा लियोन, पनामा, ग्रीस, बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी है। अगली खबर, मस्क के करीबी जेरेड साकमैन का नामांकन वापस लेंगे ट्रंप। नासा प्रमुख बनाने का किया था ऐलान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेरेड साकमैन का नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। जेरेड साकमैन अरबपति कारोबारी है और एलन मस्क के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने जेरेड साकमैन को नासा का प्रमुख बनाने का फैसला किया था। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस और नासा की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते साल दिसंबर में ही जेरेड साकमैन को नासा का नया प्रमुख बनाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल साइट पर साझा पोस्ट में लिखा था कि गहन समीक्षा के बाद मैं नासा के प्रमुख के लिए जेरेड साकमैन के नामांकन को वापस ले रहा हूं। मैं जल्द ही एक नए उम्मीदवार की घोषणा करूंगा जो मिशन से जुड़ा होगा और अंतरिक्ष में अमेरिका को प्राथमिकता देगा। गौरतलब है कि ट्रंप द्वारा मस्क के करीबी का नाम नासा प्रमुख के पद से वापस लेने का फैसला ऐसे समय किया गया जब हाल ही में मस्क ने भी ट्रंप सरकार में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख का पद छोड़ दिया है। और अब अगली खबर, दक्षिण अमेरिकी देश के बागान श्रमिक गुलामी जैसे हाल में काम करने को मजबूर हुए। इक्वाडोर ने मांगी माफी। दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में 300 बागान श्रमिकों गुलामी जैसे हाल में काम करने को मजबूर है। इक्वाडोर सरकार ने शनिवार को बागान श्रमिकों के समूह से माफी मांगी। सरकार ने कहा कि हम ऐसा राज्य बनाने का प्रयास करेंगे जो श्रमिकों के मानवाधिकारों की गारंटी दे। इक्वाडोर में हाल ही में डैनियल नोबोवा राष्ट्रपति बने हैं। क्विटो में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इक्वाडोर के मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों ने माना कि जापानी स्वामित्व वाले आबाका बागान के 300 से अधिक श्रमिकों को आधुनिक गुलामी की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया था। श्रम मंत्री इवोन नुनेज ने वचन दिया कि इक्वाडोर ऐसा राज्य बनाने का प्रयास करेगा जो श्रमिकों के मानवाधिकारों की गारंटी दे। पिछले वर्ष अदालत द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति उपायों में से एक है। फैसले में संवैधानिक न्यायालय ने निर्धारित किया कि 1963 और 2019 के बीच जापानी कंपनी फुरुकावा के श्रमिकों को पश्चिमी इक्वाडोर के एक बागान में बुनियादी सेवाओं के बिना शयन गृहों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। यह सुरक्षा परीक्षण की कमी के कारण दुर्घटनाएं आम थी। फुरुकावा के पूर्व कर्मचारी अपने वकीलों के साथ शनिवार के समारोह में शामिल हुए जिन्होंने कंपनी पर सेंटो डोमिंगो डे लॉन्स तिचलादिचास प्रांत में इसके बागान में कठोर परिस्थितियों से प्रभावित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने 2014 में मालिक बदल दिए और उसने कहा कि तब से स्थितियां बदल गई है। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच